The topic of today class is the synchronous motor. I have already completed synchronous generators. Synchronous machine having two devices. One is the synchronous generator, which I have already explained you. That is synchronous generator. And second is device is that is synchronous motor. A synchronous motor is a machine which convert an AC electrical power to mechanical power at constant speed called synchronous speed. It is similarly as a synchronous generator. It is also called doubly excited magnetic system. It is doubly excited machine इसको कहते हैं क्योंकि in this case there is a two excitation coil. One is the field winding and second is the armature winding. Field winding is excited with the DC supply and armature winding is connected with the three-phase AC supply. Due to this reason, it is known as a doubly excited machine. If you see the construction of three-phase synchronous generator, constructionally synchronous motor is similar to the synchronous generator. Construction में synchronous motor जो है synchronous generator का ही construction है. Both are constructionally same. Both having the stator and rotor. Stator is the stationary part of the machine and rotor is the rotating part of the machine. If you see this figure, this is showing the complete diagram of a synchronous motor. These are the stator. ये जो है आपका, these are stator slots. Three-phase bindings are laid on these slots. इस stator slots है, इसमें three-phase binding जो है, stator binding जो है, इन्हीं slots में laid होती है. This is the rotor. Rotor जो है, that is maybe salient pole or cylindrical rotor, but generally we are using in synchronous motor salient pole rotor. So this is the, you see in this figure, your field winding are laid on the rotor and armature winding are laid on the stator. Field winding जो है rotor पर laid होती है, armature winding जो है stator पर laid होती है. Field winding जो है that is excited with the DC supply and armature winding से जो है three phase AC supply connect रहती है. तो this is the completely regarding construction. अब हम मेन फीचर पर आते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था synchronous generator it is always rotate at synchronous speed. Similarly, this is synchronous motor will also have several features. पहला, it runs either synchronous speed or not at all. The speed is independent of load. लोड पर जो है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड नहीं डिपेंड करती है. ये या तो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है या ये नहीं रन करता है. तो दैट इज फर्स्ट फीचर. सेकंड इज इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग. सिंक्रोनस मोटर भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर इज आल्सो थ्री फेज मोटर, बट सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. इसके स्टार्ट के लिए हमको प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, जो कि आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. तीसरा है इट कैन बी ऑपरेटेड अंडर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर. मतलब ये जो है वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर, चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, सभी टाइप के पावर फैक्टर पर ये ऑपरेट करता है. सिंक्रोनस मोटर आर जनरली ऑफ सेलियंट पोल टाइप. सिंक्रोनस मोटर जो है
generally salient pole type होता है. These are the features of the synchronous motor. Now we come on the principle of working. Synchronous motor जो होता है, that is work on the principle of magnetic locking. First, पहले हम आपको what is the magnetic locking? अगर आपको magnetic locking समझ में आ जाएगा, then you can understand the principle of synchronous motor. Magnetic locking, I can explain. There are two strong magnets. That is one, दो strong magnets हैं. That is one magnet and this is two magnets. दोनों क्योंकि strong magnets है, तो tremendous force of attraction, ये अपोजिट पोल है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप. नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जब दोनों अलाइनमेंट में हैं और स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स, दोनों स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स विल डेवलप बिटवीन दीज टू, नॉर्थ एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट 1 एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट 2. तो इस स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स के कारण अब ये दोनों अलाइंड हैं. अगर एक मैग्नेट को, अगर हम दिस इज फर्स्ट मैग्नेट को हम रोटेट करते हैं, तो सेकंड मैग्नेट, यू विल सी दिस फिगर, अगर हम फर्स्ट मैग्नेट को दिस पोजीशन, इस पोजीशन से आप रोटेट करते हैं इस पोजीशन पर, सेकंड मैग्नेट विल आल्सो रोटेट ऑटोमेटिकली. तो ये भी सेकंड मैग्नेट भी रोटेट हो जाता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज अ मैग्नेटिक लॉकिंग. इसी को हम मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं. और आपका सिंक्रोनस मोटर जो है, इसी पर जो है, दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग. सिंक्रोनस मोटर जो है मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है. नाउ वी कम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. नाउ वी एक्सप्लेन हाउ द सिंक्रोनस मोटर वर्क. ये देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. कंसीडर दिस इज टू पोल सिंक्रोनस मोड, सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर है जो फिगर में शो है. दिस इज द रोटर एंड दिस इज द स्टेटर. rotor that is field winding is laid on the rotor and it is connected with DC rotary shaft. फील्ड वाइंडिंग जो है रोटर पर लेड होती है और उस पर डीसी सप्लाई से जो है इसको एक्साइट करते हैं. आर्मेचर वाइंडिंग पर वी आर कनेक्टिंग थ्री फेज सप्लाई टू द आर्मेचर वाइंडिंग, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है. अब लेकिन हमने आपको बताया है कि सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. अगर सेल्फ स्टार्टिंग, क्यों सेल्फ स्टार्टिंग, पहले हम ये अंडरस्टैंड करें व्हाई इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, फिर ये कैसे स्टार्ट किया जाएगा. तो फर्स्ट वी कम व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. यू सी दिस फिगर, क्योंकि व्हेन यू आर कनेक्टिंग ए थ्री फेज सप्लाई, जब आप तीन फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इट डेवलप ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये थ्री फेज सप्लाई जो होती है, इट विल डेवलप ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है. दैट इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड. अगर ये हम मान लें कि दिस इज टू, इट फॉर्म्स टू पोल्स, दैट इज एनएस एंड एसएस पोल्स, और ये दोनों रोटेट कर रहे हैं एट सिंक्रोनस स्पीड. दैट इज, ये जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं. नाउ यू टेक द, दिस इज द पोजीशन ऑफ रोटर एट दैट एट इंस्टेंट. दिस इज द पोजीशन ऑफ रोटर, ये रोटर की पोजीशन है. नाउ हियर व्हेन इट इज रोटेटिंग बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक एन एंड एस पोल मैग्नेटिक फील्ड का रोटेट कर रहे हैं. दिस इज एन एस पोल, दिस इज स्टेटर नॉर्थ पोल एंड दिस इज रोटर पोल. एट इंस्टेंट मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है रोटर की, और एन आर जब इसको हम डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं तो अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल विल फॉर्म. तो सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ स्टेटर. जब दोनों लाइक पोल होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लाइक पोल इज रिपेलिंग टू ईच अदर. जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो
What will be repelling? This rotor will rotate in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction ये rotate करेगा, लेकिन क्योंकि ये स्टेटर फील्ड जो है रोटेट कर रही है एट सिंक्रोनस स्पीड, आफ्टर हाफ एन साइकिल पर क्या पोजीशन आ जाएगी? रोटर की पोजीशन सेम रहेगी, दैट इज रोटर बिकॉज दिस इज स्टेशनरी एट दिस स्टेज, एंड स्टेटर की पोजीशन आफ्टर हाफ एन साइकिल, यस पोल विल कम एट दिस स्टेटर, यस पोल come at position A and rotor S pole will come at position NS because आपका स्टेटर फील्ड इज रोटेटिंग। तो जब ए एस एस पोल है, ए एन आर पोल है, ए एस एस पोल है एंड एन आर, तो अनलाइक मतलब सिमिलर पोल, अपोजिट पोल्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट विल, तो ये आपका रोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट विल रोटेट। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो द टॉर्क विल एक्ट ऑन द रोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर हाफ एन साइकिल के बाद, यू विल फाइंड दिस पोजीशन, फिर अगेन ये पोजीशन आ जाएगी, हाफ एन साइकिल, यहाँ एनएस पोल आ जाएगा यहाँ, फिर अगेन इट रिपेल टू ईच अदर, ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। इसलिए ये इस एक्सिस के एक बार एंटी क्लॉक करेगा, दूसरी बार क्लॉक करेगा, बट रिजल्टेंट टॉर्क जो रोटर पर एक्ट करेगा दैट इज जीरो। इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, इसलिए आपका सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, तो ये अपने से स्टार्ट नहीं होगा। अब हाउ विल स्टार्ट दिस मोटर? अगर आप देखें इस पोजीशन में, अगर आप देखें तो व्हाट विल हैपन, यू कम, you see this position, अगर this is NS and SR, NS जो है सिंक्रोनस रोटेटिंग, that is स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही है क्लॉक डायरेक्शन में, एंड दिस इज SR इज साउथ, एंड दैट इंस्टेंट जो है रोटर जो है इस पोजीशन पर है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फॉर्म होगा और ये रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाउ इट विल रोटेट। अब यहां मैंने यहाँ फिगर आपको नहीं देखा, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस यूनि डायरेक्शन टार्क, मतलब कैसे इसमें यूनि डायरेक्शन टार्क आप प्रोड्यूस करेंगे, या हाउ सिंक्रोनस मोटर विल स्टार्ट। तो उसके केस में हम इस फिगर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। यू सी दिस पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग magnetic field NS, SS, and this that instant, at a particular instant, the rotor is lying at this position, that is SR and RR। इस पर कौन सा फोर्स ऑफ लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट पोल है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर हम मतलब दैट इज इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर से इस रोटर को हम सेम स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करें, अगर सेम स्पीड पर रोटेट करेंगे, व्हाट विल हैपेंस, ये पोजीशन ये एनएस स्पीड पर रोटेट कर रहा है एंड इट इज आल्सो रोटेटिंग एज सिंक्रोनस स्पीड, तो सेम स्पीड पर रोटेट करेगा। तो दोनों की पोजीशन जो है, अगर पहले हाफ साइकिल में ये पोजीशन है तो दूसरे हाफ साइकिल में दिस इज एसएस हो जाएगा, ये एनएस हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है, आपका रोटर भी, इसलिए ये जो है इस पोजीशन में एनआर आ जाएगा एंड दिस इज एसआर आ जाएगा। तो यू सी दिस इज द अपोजिट पोल्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड हाफ साइकिल में भी ये रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। इस तरह से इन एवरी हाफ साइकिल इट विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब स्टेटर जो है एवरी हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टेटर फील्ड और स्टेटर पोल्स, दिस rotor will also change its position of poles with similar to the stator। तो ये आप देखें, ये ऑलवेज इस पर जो है जो टार्क एक्ट करेगा दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मोटर जो है दैट इज स्टार्ट टू रोटेट एट
clockwise direction when it regain the synchronous speed. जब ये synchronous speed regain कर लेगा due to this, so what will happen? A moment will come due to force of attraction between south pole and north pole. It will align together. क्योंकि strong force of attraction जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, and it will be aligned together. That is the position of magnetic locking. जब ये स्टेटर पोल एंड रोटर पोल दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, तो आप इफ यू रिमूव द प्राइम मूवर, अगर आप प्राइम मूवर को रिमूव कर देते हैं तब भी ये दैट विल बी रोटेट, ये रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता रहेगा। इस तरह से आप बाय यूजिंग ए प्राइम मूवर यू आर मेकिंग मोटर को जो आप सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? नाउ वी कम ऑफ द, इस तरह से सिंक्रोनस मोटर को जो है आप स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि जब सिंक्रोनस मोटर जो है मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है, जब बोथ पोल एसएस एनएस एंड एनआर एसएस अलाइन टुगेदर, जब अलाइन हो जाते हैं तो बोथ आर मैग्नेटिकली लॉक्ड, दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। अगर आपने इस पोजीशन पर आप जो है रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता रहता है अगर आप प्राइम मूवर को रिमूव कर लें। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब नाउ मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, कैसे सिंक्रोनस मोटर को आप स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। पहला मेथड है इट कैन बी स्टार्टेड बाय फॉलोइंग टू मेथड। ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग आर स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर। जैसा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर एक प्राइम मूवर रोटर से कपुल कर दीजिए और वो जो है उसी स्पीड से रोटेट, दैट विल रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर आप इंडक्शन मोटर लेते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इंडक्शन मोटर के को भी सप्लाई 3 फेज सेम सप्लाई देंगे जो आप सिंक्रोनस मोटर को दिए, और फील्ड एक्साइटेशन आप बोथ विल, तो वो आप जो है वहां पर सेम देंगे जो है, और नंबर ऑफ पोल्स ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी सेम एज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। उनके दोनों के नंबर ऑफ पोल, तब आप इंडक्शन मोटर को यूज करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम स्पीड एज इंडक्शन मोटर विल आल्सो रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। तो उस केस में ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक लॉकिंग। आपको मैग्नेटिक लॉकिंग यू अचीव कर लेंगे, और व्हेन यू विल अचीव द मैग्नेटिक लॉकिंग, मोटर जो है अगर आप प्राइम मूवर को हटा लेते हैं तो मोटर विल कंटिन्यूअसली रन एट ए सिंक्रोनस स्पीड। तो दिस इज वन ऑफ मेथड, बट इन दिस केस वी नीड either induction motor or small induction motor or DC motor to couple the rotor of the synchronous motor. Second method है that is induction motor starting by using damper winding. This is method, इसको हम making synchronous motor self starting। इस मेथड में आपको कोई प्राइम मूवर की या कोई इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग जो है दैट इज सिमिलर, दिस इज कॉपर रॉड्स प्लेस्ड ऑन द इन द स्लॉट्स इन द पोल फेस स्लॉट्स ऑफ द रोटर। ये क्या होता है, यू सी दिस फिगर, ये इंडक्शन मोटर जब आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, यू फाइंड दिस इज ए रॉड्स होते हैं दैट इज लेड ऑन द रोटर स्लॉट्स। रोटर स्लॉट्स पर एक कॉपर रॉड्स होते हैं लेड होते हैं, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द एंड। प्लीज डोंट स्पीक, प्लीज डोंट स्पीक। तो एंड कनेक्शन जो है दैट इज कनेक्टेड विद द एंड रिंग। ये जो है एंड रिंग है दैट इज आल्सो मेड ऑफ कॉपर, क्योंकि ये रॉड जिस मटेरियल का होता है एंड रिंग, यही ये इन द केस ऑफ, अगर हम आपका पोल फेस पर स्लॉट्स
होते हैं, इसमें पोल फेस पर स्लॉट्स बनाते हैं। अच्छा कौन ओपनिंग है आप पोल फेस ऑफ द मोटर, कट करते हैं, उस स्लॉट्स में हम कॉपर बार लेड करते हैं। वी आर लेइंग द कॉपर इन द स्लॉट्स। तो रोटर के पोल फेस पर हम कॉपर बार्स लेड करते हैं इन द स्लॉट्स, और ये जो है बार्स आपका ये फील्ड रोटेट करता है इन ऑल, दैट इज दिस बार इज नोन एज ए डैम्पर बाइंडिंग। इसी को हम डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। हाउ इट विल मेक द सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, आप जब 3 फेज सप्लाई देते हैं, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप है। दीज बार्स विल कट, क्योंकि इनिशियल स्टेज में दीज आर द स्टेशनरी बार्स, ये बार जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करते हैं, एंड दिस फ्लक्स विल इंड्यूस वोल्टेज इन द बार, क्योंकि बार इज शॉर्ट सर्किटेड एट द एंड विद द एंड रिंग। बार जो है एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए जो है ये आपका इसमें करंट फ्लो करेगी, एंड दैट करंट विल प्रोड्यूस इंडक्शन टार्क। ये करंट जो है ये टार्क प्रोड्यूस करेगी इन द सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन विच, जैसे आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर, तो ये टार्क जो है, इंडक्शन टार्क जो है, इस जो है बार्स द्वारा प्रोड्यूस होगा, एंड दिस टार्क विल स्टार्ट टू रोटेट दिस रोटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन द स्पीड ऑफ द रोटर विल रीच टू द सिंक्रोनस स्पीड, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और इस बार की स्पीड सेम हो जाती है, देयर इज नो रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड बार, तो व्हाट विल हैपेंस, इट विल नॉट कट द फ्लक्सेस, तो ये फ्लक्स को नहीं कट करेगी, एंड नो वोल्टेज विल इंड्यूस इन द बार एंड नो करंट विल, एंड ये बार्स जो है इनएक्टिव हो जाएगा, और मोटर जो है अपना सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता रहेगा। एंड दिस इज द मेथड, इस मेथड से हम जो है सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल से हम सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना देते हैं। इसमें किसी भी एक्स्ट्रा प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है, और सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट करता है। पिछले में बाय यूजिंग प्राइम मूवर हमने आपको बताया था, उस केस में सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम एक इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर जो है रोटर से कपुल करते हैं, और जब उस सिंक्रोनस स्पीड पर जो है रोटेट करता है, उस केस में मैग्नेटिक लॉकिंग अकर होती है। जब मैग्नेटिक लॉकिंग विल अकर्स, तो ये अपना जो है रिमूव हो जाए। इस केस में भी व्हेन द स्पीड ऑफ बोथ स्पीड विल बी रीच सेम, तो मैग्नेटिक लॉकिंग विल अकर, तो मैग्नेटिक लॉकिंग अकर करेगी। एंड व्हेन द मैग्नेटिक लॉकिंग विल अकर, जब मैग्नेटिक लॉकिंग अकर करेगी, उस केस में ये अपना ऑटोमेटिकली ये रोटर विल रोटेट, ये रोटर जो है अपने आप रोटेट करता रहेगा, एंड these bars, this is damper bars will be become inactive when it is rotating at synchronous speed. जब ये synchronous speed पर रोटेट करता है तो ये inactive हो जाता है। अब तो this is the, in this way, by using damper binding, synchronous motor is made self starting. यूजिंग डैम्पर बाइंडिंग को यूज करके हम सिंक्रोनस मोटर को जो है सेल्फ स्टार्टिंग बना देते हैं। तो इन दिस वे सिंक्रोनस मोटर विल बिकम सेल्फ स्टार्टिंग। तो नाउ वी कम ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर पोल्स, ए सिंक्रोनस मोटर कैन ओनली रन एट सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी जो है दैट इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग रोटर एंड स्टेटर पोल्स में हो जाता है, उस मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण रोटर विल आल्सो रोटेट
at synchronous speed. इसलिए आपका synchronous motor always run at a synchronous speed. At any other speed, the magnetic interlocking, that is rotor pole facing opposite polarity stator pole, ceases and average torque becomes zero. जैसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक होती है तो आपका अपोजिट पोल आ जाता है और आपका मोटर धीरे धीरे जो है स्टॉप हो जाता है. इट विल बिकम स्टॉप. तो इस तरह से आपका सिंक्रोनस मोटर जो है इट इज ऑलवेज वर्क एट सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड के अलावा ये दूसरी स्पीड पर जो है ये नहीं रन करता है. नाउ वी कम ऑन द एडवांटेजेस. वेरियस एप्लीकेशन of the three phase, various applications of three phase induction synchronous motor का क्या है? क्योंकि आपने देखा it is always run at a synchronous speed. ये हमेशा जो है synchronous speed पर रन करता है. इसलिए इसके different constant speed के कारण there are a number of applications of the synchronous motor because it is used in machine tools. machine tools में यूज होता है, मोटर जनरेटर सेट में यूज होता है, मोटर जनरेटर सेट्स में यूज होता है, सिंक्रोनस क्लॉक में यूज होता है, टाइमिंग स्मॉल सिंक्रोनस मोटर इज यूज इन सिंक्रोनस क्लॉक, टाइमिंग डिवाइसेस में यूज होता है, बेल्ट ड्रिवन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज होता है, फैंस एंड ब्लोअर्स में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड वैक्यूम पंप्स में यूज होता है, पल्स जनरेटर में यूज होता है, टेक्सटाइल मिल में यूज होता है, पेपर मिल्स में यूज होता है, रोलिंग मिल्स में यूज होता है. ये डिफरेंट एप्लीकेशन जो है. डिसएडवांटेज क्या है सिंक्रोनस मोटर का? द डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर देयर हायर कास्ट. क्योंकि इसमें आप जो है एक तो फील्ड एक्साइटेशन के लिए आपको 2 स्लिप रिग की जरूरत पड़ती है और डीसी जनरेटर की जरूरत पड़ती है टू एक्साइट इट्स फील्ड बाइंडिंग. दूसरा है इसको रोटेट करने के लिए यू आर नेसेसरी फ्रीक्वेंट नीड टू डीसी एक्साइटेशन एंड ऑक्सिलरी डिवाइस. आपको इनिशियल स्टार्ट के लिए ऑक्सिलरी डिवाइस यूज करना पड़ता है और एज स्टार्टिंग फॉर इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करने के लिए इसमें जो है आपको एडिशनल जो है कॉपर बार्स लगाने पड़ते हैं टू मेक इट एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग के समय इसको इंडक्शन मोटर बनाने के लिए इसको जो है एडिशनल बार्स जो है लेड करने पड़ते हैं इन द पोल फेस. इस तरह से इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस. तो इस तरह से हमने सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन बताया, आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताया, व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, और हाउ यू विल मेक ए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, कैसे आप सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करेंगे, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, क्या डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर है. ये सारी चीजें हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस. तो इस तरह से हम कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया हूं इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर. तो कंप्लीट हमने एक्सप्लेन कर दिया हूं आपको रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेल